चला, गुड मॉर्निंग सगळ्यांना. So we have started for the new batch, which is started on 12th of June, right? And you are all attending the introductory lectures of different subjects that are there for you in the syllabus. And today we are going to discuss about the subject called as Indian society and social issues. Now, if you see the syllabus, you have 4 general studies paper, GS 1, 2, 3, 4. Now, when I am referring to the term syllabus, actually in UPSC's notification, they give syllabus at 2 places. First, they give at prelims syllabus and then at main syllabus, right? But now if you see, main syllabus is more elaborated. It is actually explaining or giving the details of the different parts that are already mentioned in prelim syllabus, as well as additional parts that are there in the mains examination. And that's why generally in your journey now you are starting for preparation of civil services. Whenever we are referring to the term syllabus, generally you shall follow the main syllabus for understanding, right? Now, when we are looking at the whole syllabus, now you might be quite aware about the examination pattern, what is there, how the examination scheme is there. So you have to attend 4 GS papers, GS 1, 2, 3, 4. There is going to be a separate essay paper. All these papers are going to be there for 250 marks each, that are 1000 marks. Along 1000 marks and 250 plus additional of essay marks. And then you have an additional component of optional subject, right? The term optional is used because you can choose any subject as per your interest for your examination purpose. Now, in UPSC's notification, they have given the details of different available subjects that you can choose from. Generally, people choose from humanities subject and they go for that, right? Now, these 500 marks optional and 1000 marks of GS 1, 2, 3, 4, additional 250 marks of essay. This combined total makes 1750 marks of our examination, right? Now, along with that, there are 2 language papers, which are compulsory papers, in which also one English language is a compulsory paper and another language you can choose from. Many of them choose Hindi or some of them choose their own vernacular or mother tongue like Marathi or whatever language they are comfortable with. For Northeastern students, some of them, this is not there, which is detailedly mentioned in the syllabus. Most of you who are all sitting here might be choosing Marathi or Hindi as your language paper. These language papers are very important because even if their total tally, their marks are not going to be a part of total tally, but you have to clear these language paper. Otherwise, your other mains descriptive papers will not be evaluated. So consequently, you will not be qualifying for the interview purpose. And that's what language paper has to be qualified. Now, this is a basic scheme of this particular examination. Now, in the previous sessions that you have attended, other my faculty colleagues would have been discussing about it in very detail, right? Now, but our today's objective is to go into the detail of the GS paper 1. Now, there are 3, let's say, subjects that are part of the GS paper 1, general studies paper 1. One is history, in which also there are sub points like you have to study modern history, ancient history, medieval history. Then you have to also look at world history, post-independent India history, and also certain parts of arts and culture. So these are basic component of history that you have to study. Now there is another part which is geography, in which also you have to study physical geography of world as well as of India. Also human and economic geography of world as well as India. Now these are 4 different components of geography as a bada part of your syllabus. Now we'll come to our today's discussion, that is about Indian society and social issue. Now नाम बहुत बड़ा दिया है देखो, Indian society and social issue. अब ऐसा कोई separate उन्होंने लिखा नहीं है. But if you try to understand and decode the syllabus that is there, you will get to know that the component of these syllabus will be talking about some of the aspects.
For example, they will be talking about salient features of Indian society, communalism. Then they will be talking about secularism. Yes. Then they will be talking about secularism topic and role of women and women organization. Now, some of the topics that I am pointing out for you people so that to understand what they are trying to put it into syllabus. We are going to see on our screen, on our board, what are the different components of it. But point is that why this part of syllabus is there in your examination. Now, if we see the examination pattern that you are attending is an examination pattern that UPSC has introduced in 2013, right? Before that, this part of the syllabus was not explicitly mentioned in the syllabus, but they used to ask questions on that. But now we have to understand why UPSC thought that this is an important area and they need to focus on it as a separate part of the syllabus. Now, if you see, we are all part of this society, isn't it? Specifically Indian society. तो पहले सोचते हैं कि भाई सोसाइटी क्या होता है, कोई बताएगा व्हाट इज सोसाइटी? हाँ बताइए, आराम से बैठ के बताओ कोई। ओके, एनसीईआरटी पढ़ के आए हैं थोड़ा थोड़ा, चलो बढ़िया बात है। और कोई बता सकता है व्हाट इज सोसाइटी? आर यू पीपल लिविंग इन अ सोसाइटी? यस, तो बताओ व्हाट इज सोसाइटी? ठीक है, चलो। सो पहली तो चीज बोल रहे कि पीपल, यू आर ऑल रेफरिंग इट एज अ ग्रुप ऑफ पीपल, राइट, और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल. तो बिकॉज इफ यू सी, consider this classroom as well as those people who have joined us online and those who are watching us on YouTube. We comprise a society right now for the purpose, let's say, UPSC 12 June to 2024 ka English medium ka batch. So we came here for a common purpose. We share something. For example, we are going to share the syllabus, the benches, the classroom, the atmosphere. And then we will be progressing ahead with the time. So that, for example, in the future, there will be certain rules and regulations. Use a very common parlance term. Or if you want to use a society or sociology related term, we can say there are certain customs, traditions, rituals that you have to practice, isn't it? Now you all see, अभी आप यहाँ पे बैठे हो, so you are following certain decorum. Now nobody has explicitly mentioned in some rules and regulation ka, let's say some book here that you have to sit like this or you cannot sit like that. ऐसा कहीं लिखा है? जब आप एंटर किया क्लासरूम में, किसी ने आपको बताया कि अंदर जाके ऐसे सीधा ही बैठने का, ऐसे कोई लेट के नहीं लेक्चर सुनेगा. नाउ यू कैन डू इट ना. क्या आप बेंच के ऊपर पैर रख के बैठ सकते हो? यहाँ पे बैठ सकते हो ना, फिजिकली यू आर केपेबल ऑफ डूइंग इट, बट स्टिल यू आर नॉट डूइंग इट. व्हाई यू आर नॉट डूइंग इट? बिकॉज सोसाइटी, दिस
कॉल ड्रॉप झाला होता. इथून पण आय थिंक नेटवर्क गेला असेल. इथे झालाय जॉईन आता, इथे नाही झाला. ते कनेक्ट झाले, कनेक्टिंग म्हणतात. कनेक्ट करायचं होतं, चालेल. नेटवर्क तर आलंय, का होत नाही. कनेक्ट करायला जस्ट ट्राय करून झालंय, पण जॉईन झालं. तर त्यांना शेअर स्क्रीनचा ऍक्सेस मी शेअर स्क्रीनचा इथं कलिंग झालं. ठीक आहे. So sorry, there was some technical glitch, but now it has been rectified. So we were talking about when we are considering this as a society, there are some unwritten rules that are there. We call them customs. And because of that, you are following certain decorum or you are following certain practices, which when we are trying to study it in a larger context, we call them traditions or rituals, which are passed on from one generation to another generation. In certain societies, they are there for thousands of years, right? And when we are talking about certain societies where certain practices, traditions are continued for thousands of years, we are trying to refer them as a civilizations, and India is one of them, isn't it? And that's why if you look at Indian society in the 21st century, if you compare it with the Indian society, let's say in 17th century to Indian society in 7th century, or the Indian society before 500 years before the Christ, let's say Harappan civilization जब था, Indus Valley civilization जिसको बोला जाता है, you'll find out that certain things are continued over the period of time with little bit changes here and there. And that's why society becomes a formidable force. It is not tangible type of a force. You cannot see it, you cannot touch it, but you feel it all the time when you are a member of a society. The example, very common example that we discuss is को हम लोग बोलेंगे आम जिंदगी example, which we will generally refer to in our class to understand any particular concept. और कुछ mentors जिंदगी example भी आपको मैं दे दूंगा. These mentors जिंदगी examples can be used into examination while writing an answer, right? Now, if we see this society, which is a kind of a formidable force on an individual, it guides an individual to perform particular action, social action. Or sometimes an individual performs an action and then evaluates that is this action is okay with the society I am living in? Does the society approve of my action? Or does society resist to particular decision, particular gesture, particular action, particular act that I am performing? And now, when we are trying to understand this argument, we shall be also trying to understand that being a common citizen of this country, or being an individual into this society, or even if being a government officer in the nation state parlance, this society will be always there to, let's say, maybe guide or influence or maybe constrain your social action, right? Now, UPSC has tried to understand this clearly. You people who are now preparing for civil services are going to be government officers in the future. So first of all, you need to understand that society is a very important but invisible part that you have to experience or deal with. Another thing is that now we are talking about the first dimension of our discussion. The topic of our discussion or the topic of there's a subject that UPSC has suggested is Indian society and social issues. Now, why they're focusing on the term social issues here? Now try to simply understand when we are talking about Indian society, because we are living in India and UPSC is dealing with an examination where Indian society will be involved in a larger context. And that's why they are talking about primarily Indian society. Yes, in the discussions, we also
we will also try to understand or compare it with the other parts of the world, other societies, to get better understanding how Indian society is. But primarily our discussion will be revolving around Indian society per se. But the second part of the name of the subject is about social issues, right? Now, why issues, social issues? Because when society is in a harmonious condition, when it is stable, generally it is performing on its own. But sometimes it may happen that there, because of certain reason, this equilibrium that society is in is disturbed, और जो हार्मनी है सोसाइटी में उसको थोड़ा सा धक्का लगता है. And at that time, society will be trying to get back into the balance. Now, individuals may try to get the society back into the balance, or society will also try to get itself into the balance, which will be a phenomena that will be considered as social issue. Right? कैसे? छोटे छोटे से एग्जाम्पल लेते हैं. आप सब लोग न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो? अरे पढ़ रहे हो नहीं पढ़? अभी अभी शुरू किया है, सब्सक्रिप्शन लगा दिया हिंदू का, आ रहा है घर पे हिंदू, अलग ही लग रहा है ना उसको देख के, है कि नहीं? लाइफ में कभी पढ़ा नहीं था, मतलब पढ़ा था न्यूज़पेपर लेकिन उल्टा पढ़ा था. मतलब पहला स्पोर्ट्स का पेज, क्या हुआ क्रिकेट, वो मैच देखिए फिर भी उसका पढ़ेंगे एकदम डिटेल में एनालिसिस, है कि नहीं? नहीं तो बीच का पेज चिंटू पढ़ा, ग्राफिटी पढ़ा, या नहीं तो फिर जो टाइम्स ऑफ इंडिया के फैन है वो लोग बॉम्बे टाइम्स, पूना टाइम्स यही पढ़. So that is not newspaper reading for UPSC purpose. Now it has to change. Newspaper पढ़ना नहीं है, newspaper की पढ़ाई करनी. Now there is a lot of qualitative difference between these two terminology. You need not to. It is not sufficient only to read the newspaper. You need to study the newspaper. और वो कैसे करना है, क्या करना है, in the course of your preparation you will be getting to know about it more and more as the lectures will go on. But to make you understand, we'll take one example from the contemporary things that are happening around us. Have you heard about Manipur violence? मणिपुर में वायलेंस चल रहा है, कुछ लोग बोल रहे हो कहाँ है मणिपुर. ठीक है, तो उन लोगों को थोड़ा सा अभी इंडिया का मैप लगाना पड़ेगा. तो घर में आपके स्टडी रूम में जो जो अलग अलग पोस्टर्स लगाए आप लोगों ने, उसको हटा के इंडिया का मैप लगा देना. एक पॉलिटिकल मैप, एक इंडिया का फिजिकल मैप, एक वर्ल्ड का, दोनों फिजिकल पॉलिटिकल ऐसे लगा दो और देखते रहो उसको प्यार से. तो उससे क्या पता चलेगा कि हाउ डज आवर इंडिया पॉलिटिकली इज, फिजियोलॉजिकल फीचर्स कौन कौन से, which will be also an important part for your preparation in geography, international relations. प्रीलिम में इसके ऊपर क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, मैपिंग के ऊपर. मेंस में भी इसका आपका फायदा होगा. तो दिस छोटा छोटा चीज नाउ यू हैव टू स्टार्ट डूइंग इट बाय चेंजिंग द वे यूज्ड टू बी एज अ स्टूडेंट आल्सो. आप लास्ट 15 साल से 20 साल से आप सब लोग स्टूडेंट हो ही हो, बट नाउ यू हैव टू चेंज योर अप्रोच अ लिटिल बिट एज पर द डिमांड फ्रॉम द यूपीएससी कि यूपीएससी क्या चाहता है, राइट? तो अगर आप देखोगे मणिपुर विच इज सिचुएटेड इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ अवर इंडिया, मोस्टली अ ट्राइबल सोसाइटी, राइट? नाउ हम लोग वी जनरली यूज अ वेरी कॉमन टर्मिनोलॉजी ट्राइबल पीपल, बट नाउ देयर आर डिफरेंट, let's say clans or ethnicity or let's say tribal groups within the tribal communities. और हम लोगों ने देखा कि मणिपुर में 2 different tribal groups are in clash with each other. Now what's the reason behind it and why that has happened? We'll deal with it in a very detailed manner in a topic called as communalism. But to refer to an example, when such type of issue happened, now if you look it from the very जिसको आप बोल सकते हो प्राइमरीली, अगर उसकी तरफ आप देखोगे तो people will call this as a law and order problem. The 2 tribes are fighting with each other, violence is happening, security personnel are also dying, and the tribal people from both the sides are also getting injured and getting died, property is getting lost. So people will look at this issue as a law and order problem. But believe me, this is not only law and order problem, isn't it? ये लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम तब हुआ बिकॉज देयर वाज सर्टेन रीजन बिहाइंड इट. कुछ था जिसकी वजह से लोगों में गुस्सा आया, लोग एक दूसरे के साथ भिड़ गए, वायलेंस हुआ वहां पे. तो ये रीजन क्या है, ये रीजन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. और ये रीजन समझने के लिए यू एज अ फ्यूचर गवर्नमेंट ऑफिसर्स, क्योंकि वहां पे भी कोई गवर्नमेंट ऑफिसर्स होंगे फ्रॉम पुलिस,
machinery, from paramilitary forces, from administrative station side. There might be some political executive who will be looking after this situation. So these people need to know about the society there and what causing this social problem. And that's why they have mentioned the topic social issues here. So if you see the question papers of UPSC, आपके इंडियन सोसाइटी पार्ट का अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का आप एनालिसिस करोगे, और हाँ बहुत ज्यादा करना पड़ेगा, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू हैव टू डू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एनालिसिस. जब आप वो करोगे तो यू विल अंडरस्टैंड दैट the questions that UPSC has formulated are primarily the questions that were formulated or designed to cater to or to raise a certain social issue that has happened in the recent past. उस इश्यू के ऊपर यूपीएससी ने क्वेश्चन बनाया है और वो क्वेश्चन आपको आंसर करने के लिए वहां पे बोलते हैं, जस्ट टू अंडरस्टैंड कि डू यू हैव दैट एटीट्यूड, डू यू हैव दैट टेम्परामेंट, do you have that aptitude toward the service that you are going to go for? क्या आप उस तरीके से सोच सकते हो? And obviously, if they find out through your answers and later through the interview phase that yes, they have at least little or required aptitude toward the civil services, then बाद में आपको सिलेक्शन के बाद ट्रेनिंग में उसको आपको और ग्रूम करेंगे कि हाउ टू थिंक एज अ गवर्नमेंट ऑफिसर और अ सिविल सर्वेंट, राइट? तो इसीलिए ये जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है ये यूपीएससी ने ढूंढा, एंड दैट्स व्हाई व्हेन दे वर rephrasing the syllabus in 2013, they have added this part as a separate and explicit part with a very high weightage in the examination. पहले भी था, but it was not explicitly, implicitly था, क्वेश्चन आते थे. But जब explicitly mention किया है, now student will be focusing more and more, giving attention to these areas, right? And that's why we have to study this topic also in our syllabus. Now, whenever we are looking at this particular area, this is actually very easy part of your syllabus. Now, why so? I will only show you the syllabus here. Now, please read through it, what they have mentioned. ठीक है, बस पढ़ना, कोई गड़बड़ नहीं है लिखने की. This is just an introductory lecture. We are going to have a chat for a few minutes. Okay, your rigorous lectures will start from the next lecture of Indian society. और मजा भी आएगा, that I assure you. Okay, तो देखो basic चीजें लिखिए. Now when you are reading through all these, क्या इसमें से कुछ चीजें पहचान में आ रही है? कुछ ऐसे लग रहा है कि हाँ इसके बारे में कभी सुना है लाइफ में, इसके बारे में अगर कुछ बोला जाए तो 2-4 शब्द लिख सकते, 2-4 लाइन लिख सकते. सिंपल चीज है. ग्लोबलाइजेशन क्या होता है आप सब लोगों को थोड़ा आइडिया तो होगा उसके बारे में. पॉवर्टी क्या होता है, पॉपुलेशन क्या होता है, इसके बारे में बेसिक आइडिया हम सब लोगों को है. एंड दैट्स व्हाई दिस इज द इजीएस्ट पार्ट ऑफ द सिलेबस, बिकॉज सी you do not need an expertise to understand this syllabus because you have got it through your own journey in your life. Because when you are looking at the core of the syllabus, which is Indian society, you are a member of an Indian society from at least last 20-25 years. And that's why you are generally had an idea about these areas in a जिसको आप बोल सकते कि थोड़ा आइडिया तो आपको इस सब का है. Now, what we need to do about these areas is that we need to get the conceptual clarity about it. We need to develop conceptual understanding. क्योंकि एग्जामिनेशन की डिमांड बहुत प्रिसाइज है. एग्जामिनेशन में आपको क्वेश्चन दिया जाएगा and they will be referring that you have to write it in 150 words or 250 words. स्पेसिफिकली उन्होंने बोला है और क्वेश्चन भी बहुत स्पेसिफिक होगा. About this, you shall be writing about this in a critical manner or evaluative manner. Explain करो, comment करो. तो डायरेक्शन भी बहुत फिक्स होंगे और आपके लिए एरिया ऑफ दैट क्वेश्चन विल बी आल्सो वेरी मच फिक्स्ड. तो इसीलिए आपका जो जनरलाइज्ड आइडिया है दैट विल नॉट बी गोइंग टू हेल्प यू टू राइट अ गुड आंसर. इट विल हेल्प यू टू राइट एन आंसर, बट मैं यहाँ पे वर्ड यूज कर रहा हूँ गुड आंसर. बिकॉज क्या है, आप मेंस देने जब जाओगे, राइट,
ना अभी देखो मेंस का प्रिपरेशन शुरू हो चुका, जो 2023 के स्टूडेंट्स है, एस्पिरेंट्स है, उनका प्रीलिम हुआ 28 मई को हुआ। अरे पता है नहीं पता हुआ ना, और उनका रिजल्ट भी लग गया इसी वीक में, मंडे को रिजल्ट लग गया। एंड नाउ दोज हु हैव क्वालिफाइड, कितने लोग क्लियर हुए हैं प्रीलिम्स? 14,000 and odd, some around 14,600 plus people have qualified for the mains examination. Now उनका मेंस का प्रिपरेशन भी शुरू हुआ। Now जब उनका मेंस का प्रिपरेशन शुरू हुआ है, तो now you shall be thinking about this is a competitive examination. It is not only sufficient to write an answer, it is sufficient to write, it is required that you shall write an answer better than the 13,500, 600 people that are writing the case. That is the case when you will be into top 1,000 and 2,000 people and you will get an interview call. फिर वहां पे जाके भी आपको उनमें से भी बेहतर करना है. So this is the basic theme of this examination. It is not sufficient that you know, it is necessary that you know more and better than other people who are preparing for the examination. And that's why writing an answer से ज्यादा, writing a good answer, an answer with a better content, greater depth, more arguments, more examples, more substantiation is required. And that is what will be the area of interest over here. So we'll start with the conceptual understanding of any particular subject that we are going to learn. We will take one concept at a time. We'll go and talk in a very detailed manner to understand what exactly it is. Now यहाँ पे बहुत फोकस करना पड़ेगा आप लोगों को भी, और मुझे भी मेहनत करनी पड़ेगी आपके साथ, because point is that as you are a member of a society, you might have certain idea about certain particular concept that is mentioned here, but it may be a case that your own idea about any particular concept may not be the rational or the, let's say, explanation to that idea which is considered a society at a larger level, right? Because you, as your life went on, as you, let's say, progress from childhood to adulthood, different agencies imparted knowledge on you. Try to socialize you, including your family, your peer group, friends, and other things. Also, the schooling system that you went through, education system, they try to make you a social animal, right? So you born as a biological animal, they made you a social animal through these industries. Yeah, जिसको आप बोल सकते हो, these are the institutions that were used by the society to socialize. Okay, जब आप social animal बने, social being बने, animal बोले तो लोगों को बुरा लगता है, ठीक है, but social being word use करते हैं. You became a social being. Now you became a social being according to the knowledge given by these institutions. May be or may not be rational, or maybe or may not be the opinion that you form will be the opinion that is followed on a larger context at a societal level or national level. And that's why it is very important that we need to learn the conceptual thing from the very standard references that we are there. So generally, if you see, NCERT is a reference that generally we follow. NCERT सब लोगों को पता होगा, right? तो NCERT की बुक है. हमारे सब्जेक्ट के लिए कौन कौन सी पढ़नी है वो मैं आपको थोड़ी देर के बाद बताऊंगा. So we need to follow that. Along with that, there will be more reference book written by certain authors. वो भी follow कर सकते हैं, जिससे हम लोगों का conceptual clarity बनेगा, which will be more of a theoretical knowledge, right? Because it is already there in the book. We can call also it as a traditional knowledge, right? It has to be substantiated with application knowledge. इसका application भी करना पड़ेगा. And that's why I gave an example of Manipur violence, which is happening in the contemporary times. So application आपको कहाँ से आना पड़ेगा? तो current affairs is an area which will help you here. And that's why newspaper reading becomes a very important part. Because whatever there is in a book, everybody is going to write it. Now when we are talking about those who are coming for mains and are preparing in a better way, so it is very much expected that उन लोगों ने किताबें पढ़ी है, right? तो हम लोगों को ये समझना है कि भाई किताबें तो उन लोगों ने पढ़ी है, तो हम लोगों ने किताबें नहीं पढ़ी है तो फिर तो बहुत बड़ा डिसएडवांटेज हो जाएगा. तो हम लोगों को भी पढ़नी पड़ेगी.
और उसके साथ साथ एक्स्ट्रा हम लोग क्या कर सकते हैं, तो वी नीड टू बी वेरी मच कीनली नोइंग अबाउट द कंटेम्पररी इवेंट्स हैपनिंग इन एंड अराउंड अस. So while teaching also, we will try to give you certain good examples, case studies, maybe some Supreme Court judgments about that particular issues, maybe some government reports published, or some reports of international agencies, reputed agencies like United Nations, or let's say if you are talking about poverty, we can connect it to Global Hunger Index. It's a renowned index prepared by renowned institution. तो ये सब collect करना पड़ेगा. Now certain things we will try to give you. You can also build upon it while reading your current affairs, and then this will be a symbiotic process through which we will be progressing. So in the lectures also I will try to tell you how you shall be reading the newspaper, particularly from the societal point of view, कि हमारे इंडियन सोसाइटी सोशल इश्यूज के लिए कौन से न्यूज इंपॉर्टेंट होते हैं, उसको उसके थ्रू आपको कैसे पढ़ना है. और उसके लिए एक देयर इज एन ओपन टू ऑल टेलीग्राम चैनल आल्सो, शिवाजी काले सोशियोलॉजी एंड सोशल इश्यूज, राइट. तो उस पे आई विल बी ट्राइंग टू अपलोड सर्टन न्यूज़पेपर आर्टिकल्स दैट आर इंपॉर्टेंट फ्रॉम द सोशल इश्यूज पॉइंट ऑफ व्यू. Now this channel is quite old, so पिछले वाले भी सारे important news articles वहाँ पे उसके ऊपर है. तो whenever you have a time and if you want to go, because it is an open to all, you can simply go through that channel to get to know about what was the social issues happened in the recent past. Now ये पढ़ने के बाद इसका हम लोगों को यूज करना है in our answers. But वो कैसे करना है, क्या करना है, ये I will be telling you in the due course of time. पहले कंसेप्ट समझेंगे, फिर उसका एप्लीकेशन करेंगे, फिर देखेंगे इसके ऊपर क्वेश्चन कैसा पूछा गया है. कोई प्रीवियस ईयर में ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछा गया था, आने वाले सालों में इसके ऊपर कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा. सम ऑफ यू माइट बी प्रिपेयरिंग फॉर 2024. हाउ मेनी ऑफ यू आर प्लानिंग फॉर 2024? यस. एंड हाउ मेनी आर फॉर 2025? ओके, सो अराउंड 60%, 70% आर गोइंग फॉर 2024. मैंने हाथ याद रखे किसने किसने उठाए थे. 2 महीने के बाद पूछूंगा. आई एम श्योर दैट उसमें से कुछ हाथ नीचे नहीं आएंगे, राइट. जनरली दिस हैपेंस. एंड व्हाई दिस हैपन? बिकॉज वी प्लान फॉर सर्टेन थिंग एंड देन वी लैक इन एग्जीक्यूशन. दिस इज अ क्लासिकल डायलेमा जो हम लोग देखते हैं. जनरली पीपल हैव अ टेंडेंसी टू क्रिटिसाइज सर्टेन गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स फॉर द लैक ऑफ इम्प्लीमेंटेशन और slow speed of the implementation. But किसी को क्रिटिसाइज करना इजी होता है when it comes to our own case implementation का. तो प्लान तो सब लोग बढ़िया बनाते हैं, लेकिन आप में से कुछ लोगों ने पहले दिन पे ही प्लान बनाया होगा कि मैं सुबह 3 बजे उठूंगा और बहुत पढ़ाई करूंगा और रात को मैं 2 बजे सो जाऊंगा, वापस 3 बजे उठूंगा. ऐसा बनाया होगा कोई लोगों ने प्लान, ठीक है. Then the plan will be there for next 2 days. उसके बाद तीसरे दिन जो सोएगा बंदा वो 6 महीने उठेगा ही नहीं, राइट. बिकॉज सी एवरीबडी कैन मेक एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्लान. देयर इज नथिंग ग्रेट डील अबाउट मेकिंग एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्लान, बट making an ordinary plan and implementing it in an extraordinary way is the great deal that you people have to achieve. This examination is all about doing the right thing at the right time with the right speed and very important with the right direction. Now right thing कौन सा है ये हम आपको बताएंगे, right time कौन सा है ये भी हम आपको बताएंगे, right direction कौन सी ये भी हम आपको during the whole course of preparation and even after that also we will be trying to give you कि किस direction से better direction है आप लोगों के लिए जाने के लिए. But right amount of efforts has to be from your side. तो देखो 3 चीज तो हम कर रहे हैं, एक चीज आपको करनी है, because that is what everybody has a different capability of, right? वो ये कैपेबिलिटी डिफाइन करेगा कि आप कितना अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर सकते हो, राइट. तो पहले हम लोग कंसेप्चुअल क्लैरिटी करेंगे, देन उसके बाद उसका एप्लीकेशन करेंगे, और उसका एप्लीकेशन करते समय भी वी विल बी फोकसिंग ऑन मल्टी डायमेंशनल और मल्टी सिलेबस इश्यूज. क्योंकि कैसे, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो नाउ इफ यू सी even with the basic knowledge that you people have, we can see this topic poverty that is mentioned here. Can we say that this is related to economics in general?
poverty as a topic is related to economics. Yes, obviously it is. And if you go and try to see it through your syllabus, GS3 में इकोनॉमिक्स आपको दिया गया है, उसमें भी आपको ये पॉवर्टी टॉपिक मेंशन किया हुआ दिखेगा, राइट? If you look at this particular topic, population, can we say with a very common sensual logic that this is more related to geography, isn't it? Geography में आता है, नाम ही ह्यूमन ज्योग्राफी, तो पॉपुलेशन उसमें आता है. बट when we are studying it here, तो आप उसको ज्योग्राफी में भी पढ़ोगे, इकोनॉमिक्स में भी पढ़ोगे और सोसाइटी में भी पढ़ोगे, तो इससे क्या हो जाएगा? You will develop multi-dimensional understanding about the same issue that is there in the discussion. तो सोसाइटल एस्पेक्ट उसका क्या है? That will be more important area. Yes, we will try to talk about उसका बेसिक इकोनॉमिक्स, बेसिक ज्योग्राफी क्या है, बट उसका सोसाइटल डायमेंशन क्या है, इसके ऊपर डिस्कशन में ज्यादा फोकस होगा. बट इसका फायदा आप लोगों को क्या होगा? सो व्हेनेवर नाउ suppose we completed this topic in Indian society part early and then economics part started, then indirectly जब आप वहां पे जाओगे and then you will be studying poverty there, आपका क्या होने वाला है? वहां पे रिवीजन होने वाला है. बट ये कब हेल्पफुल होगा? whenever you are trying to complete your preparation or syllabus or let's say your own study along with the classes that are happening. So this will be my sincere advice to you all people, that you have to be now very much keen to complete whatever work that is there along with the classes that you are attending, especially those who are preparing for 2024. 2025 के लिए जो प्रिपेयर करने वाले हैं उनके लिए एटलीस्ट देयर विल बी अराउंड 8 to 10 months का बफर बिटवीन द क्लासेस एंड द एग्जामिनेशन दे विल बी अटेम्प्टिंग. बट वो एक्स्ट्रा टाइम पीरियड नहीं है, दैट इज एन एक्स्ट्रा अपॉर्चुनिटी दैट यू हैव. तो आप डबल प्रिपेयर करके जाओगे, दैट विल बी अ बेसिक assumption दैट वी आर कीपिंग. बट पॉइंट है कि 2024 के लिए जो प्रिपेयर करने वाले हैं उनके लिए along with the class you have to complete the reading, then making a notes, then trying to solve at least certain previous year's question. तो जैसे ही क्लासरूम में जो भी पार्ट आपका पढ़ाया जाएगा, आपको घर जाना है, आपको बताया जाएगा ये कहाँ पे दिया है, ये कहाँ से आपको पढ़ना है, इसके ऊपर प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर आपको देखने पड़ेंगे. सिलेबस आपका बहुत अच्छी तरीके से देखा हुआ होना चाहिए, राइट? तो सिलेबस सबके पास होगा ही, है क्या? लिखा हो कहाँ पे? अच्छा, क्लास नहीं, इंस्टीट्यूशन ने दिया है, बाकी लोग लेके नहीं आए, रूम पे रख दिया, बिजली जाएगी तो हवा लेने के लिए. दैट इज ऑल्सो यूज ऑफ अ सिलेबस. बट सबसे बढ़िया वाला यूज कौन सा है? हाँ, ये अभी आपका मतलब ये हमेशा आपके साथ होना चाहिए, राइट? कोई हो ना हो, सिलेबस तो होना ही चाहिए साथ में. नाउ व्हाई? बिकॉज यूपीएससी आस्क क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द सिलेबस ओनली. देयर इज अ कॉमन मिसअंडरस्टैंडिंग अबाउट यूपीएससी, जो जनरली आप बिफोर कमिंग टू यूपीएससी का प्रिपरेशन, जनरली लोग आपको ये बोलते हैं कि यूपीएससी में कुछ भी पूछते हैं, मतलब जो सूरज के नीचे है और जमीन के ऊपर है, शायराना बन जाते हैं लोग. हाँ, या मतलब वो मराठीमध्ये ते म्हणतात ना की समुद्राची शाई आणि आकाशाचा कागद केला तरी यूपीएससी का प्रिपरेशन का सिलेबस खत्म, ऐसा कुछ नहीं है. दिस इज अ कॉमन मिसअंडरस्टैंडिंग. ठीक है, दे हैव गिवन एन एक्सप्लिसिट सिलेबस पॉइंट बाय पॉइंट कि हम लोग इसमें से पूछेंगे, एंड बिलीव मी 99% क्वेश्चंस विल बी फ्रॉम दैट एरिया, राइट? तो आप लोगों को उसको फॉलो करना है. उसमें से भी आपको और थोड़ा सा प्रिसाइज अगर जाना होगा, तो सेकंड थिंग दैट यूपीएससी हैज गिवन यू इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर. यूपीएससी गिव्स यू ओनली 3 थिंग्स. फर्स्ट इज नोटिफिकेशन, उसमें सिलेबस उन्होंने दिया है, तो सेकंड इज सिलेबस, और थर्ड थिंग दैट इज कमिंग फ्रॉम यूपीएससी साइड इज क्वेश्चन पेपर. तो ऑब्वियसली आपका क्वेश्चन तो पेपर तो आपको एग्जाम हॉल में मिलेगा, लेकिन पहले वाले जो क्वेश्चन पेपर्स है वो सारे आपके पास. तो यूपीएससी की वेबसाइट पे भी उन्होंने डाल के रखे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर. वहां पे जो ढूंढने को अगर प्रॉब्लम हो रहा होगा, तो जो टेलीग्राम चैनल मैंने आपको बता दिया, शिवाजी काले सोशियोलॉजी एंड सोशल इशू, उसके ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चन पेपर, बहुत सारी चीजें डाली. इवन आई हैव अपलोडेड वन एनालिसिस ऑफ 2022 टॉपर्स मार्क्स. तो मेंस में
हर सब्जेक्ट में कितने कितने मार्क्स आए, तो सारे लोगों का नहीं, अराउंड 130-135 लोगों का एक एनालिसिस है जो वहां पे अपलोड किया है। तो यू शैल गो एंड ट्राई टू सी इट कि क्या है वो एग्जैक्टली तो इट विल गिव यू अ बेंचमार्क कि कहाँ हम लोगों को पहुंचना है, दैट इज व्हाट वी विल बी टारगेटिंग एंड देन वी विल बी स्टार्टेड प्रिपेयरिंग अकॉर्डिंगली, राइट। तो सिलेबस यू नीड टू ऑलवेज फॉलो, कीप इट विथ यू एंड यू नीड टू रिमेम्बर द सिलेबस। आप बोलोगे रट्टा मारना है, हाँ सिंपल, रट्टा मारना है सिलेबस का, बट तोते जैसे नहीं, इंसान जैसे। कैसे? मतलब you need to not only remember the syllabus but you need to also know its application। मतलब क्या? फॉर एग्जाम्पल ये मेरे 10 पॉइंट है इंडियन सोसाइटी के, अगर मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि भाई अर्बनाइजेशन का कुछ मेंशन किया है उन्होंने, अर्बनाइजेशन देयर प्रॉब्लम एंड देयर रेमेडीज, ये सिलेबस में उन्होंने मेंशन किया है। तो सपोज व्हेन आई एम रीडिंग अ न्यूज़पेपर एंड आई केम अक्रॉस अ पर्टिकुलर स्कीम, फॉर एग्जाम्पल I came across a scheme called as Housing for All Project or Pradhan Mantri Shahri Awas Yojana. And then when I read through that particular news, I got to understand that this particular scheme is focusing on the people who are living in a slum area, so that government will be trying to give them house with the basic amenities that are available, and they are trying to solve a problem of an urbanization, because housing is a big problem in urban areas. So this is one of the problems. Now when I read the news, if I remember my syllabus, there is certain point called as urbanization and its problems and its remedies, तो ये न्यूज मेरे लिए इंपॉर्टेंट बन गया। Now I was unable to understand कि ये न्यूज मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज वेरी कॉमन मिस्टेक, और उसको आप बोल सकते कि शुरू शुरू में ये सबके साथ होगा कि दैट यू विल बी ट्राइंग टू रीड अ न्यूज़पेपर, बट आपको 3 घंटे लगेंगे, 4 घंटे लगेंगे किसी किसी को ना। ये 2-3-4 घंटे क्यों लगते हैं न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए? उसके 2 रीजन है। पहला एक रीजन है कि वी डू नॉट पिक अप द राइट न्यूज, वी कीप ऑन रीडिंग एवरीथिंग दैट इज देयर। मोस्टली पीपल विल गो आफ्टर द पॉलिटिकल न्यूज, पॉलिटी का न्यूज पढ़ना है, पॉलिटिकल न्यूज नहीं पढ़ना है, राइट। कि कौन कहाँ पे भाग गया, राइट, है कि नहीं, कौन किस पॉलिटिकल पार्टी से किस पॉलिटिकल पार्टी में चला गया, नॉट इम्पोर्टेंट फॉर अस, राइट। हाँ, हम लोगों के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि पॉलिटिकल पार्टी कैसे रिकॉग्नाइज करती है इलेक्शन कमीशन। अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी अपना पार्टी छोड़ के दूसरे पार्टी को समर्थन कर रही है, सो देयर विल बी एन डिफेक्शन दैट इज हैपनिंग। तो एंटी डिफेक्शन लॉ क्या है, ये हमारे पॉलिटी सब्जेक्ट का मैटर है, बट आई विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस ओनली व्हेन आई नो द सिलेबस इन डिटेल, राइट। So I will be more interested into knowing not political news but political news, not sensational news कि अरे यहाँ पे क्या हुआ। So whenever I am reading a Manipur violence incidents, I will not be much interested into the case that कि क्या हो रहा है, कितने लोग मर गए, ये हो रहा है, ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट वहां पे आया, कौन जिम्मेदार है। फॉर एग्जाम्पल सपोज ट्रेन एक्सीडेंट हैपेंड रिसेंटली, so I will not be much interested into कि कैसे sabotage है, किसने resignation देना चाहिए। These are all sensational news। तो sensational news का हमारे लिए काम नहीं। We will be more into the content of that thing कि रेलवेज इंडिया का क्या है, कैसे फंक्शन करता है, what are the safety mechanisms installed, कवच नाम का कुछ है कि नहीं, तो वो नहीं इंस्टॉल हुआ था, तो क्या प्रॉब्लम है, तो रेलवेज में रिफॉर्म आने चाहिए कि नहीं आने चाहिए। Where there are certain committees that have suggested certain reforms for the railways. Now this is the area of study that you shall be focusing on. और ये आने के लिए that is what we called as कि यूपीएससी का एटीट्यूड आना चाहिए, यूपीएससी का एप्टीट्यूड तभी डेवलप होगा, राइट। ये आने के लिए द सिलेबस इज द की फॉर योर पीपल। जिसका जितना ज्यादा सिलेबस अच्छी तरीके से याद है, जितना पिन पॉइंट दे कैन अंडरस्टैंड कि क्या पढ़ना है, इवन इन योर बुक्स ऑल्सो। So suppose we have suggested you certain books. Let's say NCERT की book मैंने आपको suggest की. So see, NCERT books are not designed for the UPSC syllabus. UPSC syllabus resembles a lot of the things from the NCERT's book, and that's why we suggest. Certain state books are also suggested. Na? For example, Tamil Nadu board books are also suggested. Maharashtra state board books are also very good for certain cases. For example, for the society part, Maharashtra State Board is also very good book.
It is also there in Marathi also. So those who are comfortable can read it. NCERT books are also very good. So certain books from the certain syllabus, national curriculum है open वाला, उसका भी NIOS जिसको बोला जाता है, उसकी भी कुछ बुक्स अच्छी है, वो भी किस सब्जेक्ट के बारे में आपको सजेस्ट की जाएंगी. सो पॉइंट इज दैट कि whatever material has been suggested to you, इसका मतलब ऐसे नहीं कि पहले पेज से लास्ट पेज तक उसको पढ़ना. पहले रीडिंग में आप पढ़ सकते हो, but then you need to be focusing specifically on certain part of that syllabus. कि अरे मेरे सिलेबस में ये टॉपिक दिया, इसके रिलेटेड इस टॉपिक में इस पेज के ऊपर ये 2 पेज बढ़िया दिए हैं, तो ये थोड़ा मैं ज्यादा डिटेल में पढ़ूंगा. देन आई विल ट्राई टू मार्क इट डाउन, हाईलाइट इट, अंडरलाइन इट, उसमें से सिलेक्टेड पार्ट लेके मैं मेरे नोट्स में डालूंगा. नाउ दैट एप्टीट्यूड यू हैव टू डेवलप इन द कमिंग पीरियड ऑफ टाइम. ठीक है, बट ये प्रोसेस जो है, दिस विल बी अ ग्रेजुअल प्रोसेस. It will be going along with the preparation that will be having. तो syllabus you have to by heart. और अपना तो बहुत ही सिंपल है, 10 ही पॉइंट है, तो ये तो आप सभी याद कर लो, आज ही याद कर लो. तो आज के न्यूज़पेपर से आपका इंडियन सोसाइटी का करंट अफेयर्स पढ़ाई शुरू हो गया, राइट. नाउ दिस इज आल्सो इम्पोर्टेंट थिंग. यू नीड टू बी वेरी क्विक इन लर्निंग. whatever has been told to you, whatever you have learned, you need to apply it very quickly. आज कुछ चीज पढ़े है ना, आज कुछ सीखा है ना, उसको आज से ही अप्लाई कर दो. सो योर जर्नी बिकम्स शॉर्टर एंड शॉर्टर, राइट. So that is your now choice that how long you have to go through this journey. कितना शॉर्ट आपको उसको करना है, ये आपकी मेहनत के ऊपर डिपेंड करेगा, और मेहनत के लिए कोई एक्सेप्शन है नहीं, राइट. तो जो ज्यादा मेहनत करेंगे उसको लक फेवर करेगा, ये हमेशा आप याद रखो, राइट. तो सर्टन पीपल, स्पेशली अभी रिसेंटली रिजल्ट भी लगा 2022 का, आप लोगों ने शायद देखा होगा. आवर यूनिक एकेडमी हैज परफॉर्म एक्सेप्शनली एज ऑलवेज. लॉट ऑफ स्टूडेंट्स गॉट इनटू सर्विसेज. तो उनका फैसिलिटेशन प्रोग्राम भी हुआ. सम ऑफ यू माइट हैव अटेंडेड इट. दोज हु हैव नॉट, डू वॉच द यूट्यूब वीडियो, रिकॉर्डेड वीडियो डाला है, and watch what these people who have got selected are talking about. They will be always talking about one thing, that everything is there at one place, but hard work has no replacement. सबको मेहनत करना पड़ेगा. हाँ, किसी का स्पीड थोड़ा ज्यादा कम हो जाएगा तो उसको कम ज्यादा करना पड़ेगा, बट पॉइंट इज दैट देयर इज नो एक्सेप्शन फॉर हार्ड वर्क. तो ये तो पक्का पकड़ के चलो कि हार्ड वर्क करना है, बट उसमें कुछ डिफिकल्टी है भी नहीं. अभी तो वैसे ही जवानी है सब लोग, तो मेहनत में कोई पीछे नहीं हटेगा, राइट. सो नाउ व्हेन वी लुक एट दिस पर्टिकुलर सिलेबस, वी गॉट टू नो दैट कि हाँ भाई, इसका बहुत हम लोगों को याद होना चाहिए. और दूसरा चीज जो मैंने आपको बोला, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर, ये टॉपिक उन्होंने मेंशन किया है कि कम्युनलिज्म. तो कम्युनलिज्म पे आता कौन से टाइप का क्वेश्चन है, तो वो अगर हम लोगों को पता है, तो व्हाट कंटेंट फ्रॉम एनी मटेरियल दैट आई एम रीडिंग थ्रू, मे बी अ बुक, मे बी अ क्लास नोट, मे बी अ न्यूज़पेपर. सो पूरा न्यूज में से कौन सा इंफॉर्मेशन लेना है, पूरे बुक में से 5 पेज है अगर उस चीज के ऊपर, तो कौन सी ऐसी 10 लाइन है जो मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और कौन सी 500 लाइन में निग्लेक्ट कर सकता हूँ, और कौन सी इसमें से 15 ही लाइन में चूज कर सकता हूँ. यू विल गॉट टू नो दैट ओनली व्हेन यू विल बी लुकिंग एट प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर, राइट. सो दीज 2 थिंग्स यू हैव टू डू फ्रॉम द टुडे ओनली. फर्स्ट थिंग इज दैट सिलेबस चाहिए, और वो ये वाला नहीं कि मोबाइल में है, पीडीएफ में है, वो पीडीएफ में ही रह जाता है, राइट. क्योंकि कैसे, वो देखने के लिए आप मोबाइल निकालते हो और नोटिफिकेशन दिख जाता है, फिर आप नोटिफिकेशन को फॉलो करते हो, सोशल मीडिया पे चले जाते हो, कोई विशेष व्यक्ति ने कुछ लिखा होता है, और फिर ख्याबों ख्यालों में आप उधर ही बह जाते हो, और बहते बहते कब डूब जाते हो पता ही नहीं चलता. बेचारा सिलेबस पीडीएफ में ही वैसे ही एक्रोबैट रीडर ने पढ़ा है. तो इसीलिए हार्ड कॉपी रखो. आई नो यू पीपल आर डिजिटल जनरेशन, एवरीथिंग इज डिजिटल इन योर लाइफ, बट थोड़ा सा ओल्ड स्कूल की तरह बिहेव करेंगे जस्ट टू अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस. छोटा छोटा चीज, हार्ड कॉपी है सिलेबस का, उसको देखने की तरफ बाकी कुछ दिखेगा नहीं, वही दिखेगा, तो उसको फॉलो कर सकते हो, राइट. पीवाईक्यू के भी आप क्वेश्चन पेपर्स होते हैं, वो भी डाउनलोड कर लो, कोई प्रिंट आउट निकाल सकता है, बुक खरीद सकता है, एज पर योर चॉइस, बट यू हैव टू गो थ्रू दैट एवरी टाइम, राइट. एंड दिस इज फॉर ऑल सब्जेक्ट्स. This is actually common for all subjects, but I'm just referring it to Indian society subject for a discussion purpose, right? Now हम लोगों ने बोला कि कैसे क्रॉस डिसिप्लिनरी स्टडी भी करेंगे, जैसे कि जब फॉर एग्जांपल हम लोग कम्युनलिज्म की बात कर रहे हैं या सेकुलरिज्म का टॉपिक की बात कर रहे हैं,
right? This area. This is also connected to polity part in your syllabus GS2. और जब सेकुलरिज्म का टॉपिक पढ़ाऊंगा तो पहले थोड़ा पॉलिटी पढ़ाऊंगा, फिर सोसाइटी की तरफ लेके आऊंगा. तो जब आप पॉलिटी पढ़ने जाओगे तो यू विल बी नोइंग लिटिल बिट अबाउट इट. तो जब वहां पे आप सीखोगे तो रिवीजन हो जाएगा. और अदर वे राउंड आल्सो, अगर पहले पॉलिटी में आपका सेकुलरिज्म पढ़ के हुआ है तो देन इट विल बी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट. सो डबल रिवीजन करके चलेंगे. तो दिस सब्जेक्ट हैज अ मल्टी डिसिप्लिनरी बेनिफिट. और सबसे बड़ा बेनिफिट तो आपको मिलेगा एसए में. We already talked about it. 250 मार्क्स आते हैं ऐसे को, एंड दिस इज वेरी स्कोरिंग एरिया. मैंने जो आपको बोला था कि एनालिसिस डाला है, तो एनालिसिस को अगर आप देखोगे तो ईच पेपर इज ऑफ 250 मार्क्स, बट आप ऐसे में अगर देखोगे तो 140 मार्क्स भी लोग लेके आए. हमारे ही एक स्टूडेंट है जैनोम जैन करके, उनको अराउंड आई थिंक 146 मार्क्स ही हैज स्कोर्ड एंड 149 का ऑल इंडिया टॉपर है. तो ये जस्ट रीच there 2-3 marks, but to get 146 mark is an exceptional mark in an essay. You can also get it if our other student can get it. ऐसे ही बैठेंगे कभी कभार आपके जैसे इसी बेंचेस पे, जो भी टॉपर हम लोगों के ऐसे ही बैठेंगे ना कभी कभार, तो बस उन्होंने मेहनत किया वहां पे पहुंच गए. बट पॉइंट इज दैट यू कैन गेट 145 प्लस मार्क्स इन एन एसे, बट उतना जीएस पेपर 1, 2, 3 में लेना थोड़ा डिफिकल्ट है. अगेन कम्स एन इथिक्स पार्ट GS4 का, वहां पे भी आपको ये मार्क्स आते हैं. 135 प्लस मार्क आए लोगों को, 140 भी मार्क आए किसी किसी लोगों को. तो ये एथिक्स जो है, एथिक्स, इसमें भी आपको ये दोनों चीजों में फायदा होगा. क्यों, कैसे? तो देखो भाई, एथिक्स का सिंपल लॉजिक है कि आपको फिलोसॉफिकल इथिक्स पढ़ाया जाएगा, एडमिनिस्ट्रेटिव इथिक्स पढ़ाया जाएगा, और सोशल डायमेंशन ऑफ इथिक्स भी एक होता है. क्योंकि एथिक्स बताता है आपको व्हाट इज अ राइट थिंग टू डू, what is right, what is wrong, what is good, what is bad. This is a subject matter of ethics, isn't it? कि सही चीज कौन सी है, गलत कौन सी है, और आपने सही चीज करनी चाहिए, ये एथिक्स बताएगा. और सोसाइटी, जो सोशियोलॉजी का छोटा पार्ट है, व्हाट इज एन एरिया ऑफ सब्जेक्ट ऑफ सोसाइटी? इट स्टडीज सोसाइटी एज इट इज. कि सोसाइटी कैसे है ये पहले आप पढ़ो, फिर सोसाइटी कैसे होना चाहिए ये आप बता सकते हो. जो है और होना चाहिए इज ए राइट थिंग टू डू, इजंट इट? फिलोसॉफी क्या बताता है आपको कि लाइफ कैसी होनी चाहिए, आपकी सोसाइटी की, कंट्री की, ग्रुप की, फैमिली की, इसके बारे में फिलोसॉफिकल अप्रोच बात करें. और वो अचीव करने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन शैल डू व्हाट, तो हो गया एडमिनिस्ट्रेटिव इथिक्स. अरे समझ रहे हो, बेसिक में. तो अगर आपका सोसाइटी का नॉलेज अच्छा है तो आपको इथिक्स समझने में आसानी होगी. अगर आपका सोसाइटी का नॉलेज अच्छा है तो आपको ऐसे लिखने में जरूर आसानी होगी. बिकॉज even if there is any subject in your essay, you can connect it to social issues happening in and around you. अरे लिख सकते हो, नहीं लिख सकते, isn't it? Go and try to see essay papers. There will be most of the time in the recent 2-3 years they are asking more and more philosophical statement. But you decode it, you'll understand it is connected to certain personal problem, personal choice, personal quality, individual का quality या societal issue. किसी एक थीम के ऊपर ज्यादा फोकस उस फिलोसॉफिकल स्टेटमेंट का है, तो उसको अगर आप समझ पाए तो उस इशू के आप साथ कनेक्ट करोगे. फिर उसका आपको पॉलिटिकल डायमेंशन लिख सकते हो, इकोनॉमिकल डायमेंशन लिख सकते हो, विच आर ओवरऑल पार्ट ऑफ द सोशल एरिया दैट आर देयर. समझ रहे हो? तो डायरेक्टली तो आपका सिलेबस में जीएस पेपर 1 में उन्होंने मेंशन किया ही है सिलेबस इसका, और उसका वेटेज कितना है. तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक एनालिसिस आपके सामने रखा है. 2013 से हम लोगों ने डिस्कस किया कि ये पार्ट है सिलेबस में. यहाँ से अगर देखोगे तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आए हर साल, उसका मैंने नंबर लिखा है, राइट, मेंस का. ठीक है, दिस इज फॉर मेंस एग्जामिनेशन. अगर आप देखोगे तो इंडियन सोसाइटी पार्ट इज मेंशन्ड इन आवर मेन सिलेबस. एक्चुअली होता है मेन, बट सब लोग मेंस बोलते हैं, हम भी बोलेंगे मेंस, क्या फर्क पड़ता है. कि मेंस में सिलेबस में है वो, प्रीलिम में डायरेक्टली मेंशन नहीं है, बट आपको कुछ क्वेश्चन आएंगे जिसमें सोशल स्कीम्स जो होंगी उसके ऊपर आपको अलग अलग क्वेश्चन आएंगे. तो इट विल बी इनडायरेक्टली बिकम अ पार्ट ऑफ योर करंट अफेयर स्टडी. गवर्नमेंट स्कीम्स या सोशल ऑर्गेनाइजेशंस, ये जो है ये आप सारा करंट अफेयर्स में इनडायरेक्टली पढ़ोगे ही पढ़ोगे. तो आप इनडायरेक्टली इंडियन सोसाइटी का पार्ट सिलेबस में है आपको प्रीलिम को. बट मेंस में
बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली मेंशन है। तो इतने सारे क्वेश्चन आते हैं। नाउ कितने मार्क्स आते हैं ये देखते हैं, ठीक है। नाउ वी आर मोर इंटरेस्टेड इनटू मार्क्स ना। तो इसको उन्होंने ऐसा डिवाइड किया है कि 3 क्वेश्चन आते हैं 10 मार्क के, तो ये हो गए 30 मार्क्स, और 3 क्वेश्चन आते हैं 15 मार्क्स के। तो टोटल कितना हुआ? 70 आउट ऑफ 2। तो दिस इज द वेटेज फॉर योर इंडियन सोसाइटी पार्ट। ना आप बोलोगे इतना डिटेल में जाना है क्या? इससे भी और डिटेल में जाना है, नेक्स्ट लेक्चर में जाएंगे, क्योंकि हम लोगों को पता होना चाहिए ना किसने कितने मार्क्स किस सब्जेक्ट को। अगर हमें पता है कितने मार्क्स किस सब्जेक्ट को है, तो देन वी कैन डिसाइड हाउ मच टाइम वी शैल बी एलोकेटिंग टू दैट सब्जेक्ट। नाउ यू हैव टू बी वेरी वेरी गुड इन योर प्लानिंग। प्लानिंग मतलब ये नहीं कि वो वाला सुबह 3 बजे उठूंगा, 3:15 बजे चाय पीऊंगा, 3:30 बजे चेयर पे बैठूंगा, 3:45 बजे सो जाऊंगा चेयर पे, तो वो वाला प्लानिंग। आई एम टॉकिंग अबाउट ओवरऑल प्लानिंग ऑफ नेक्स्ट 2 years। जो 2024 के लिए एग्जामिनेशन प्लान कर रहे हैं, उनका एग्जामिनेशन होगा मई 2024 में, फिर प्रोसेस से मेंस जाओगे, इंटरव्यू जाओगे, फाइनल रिजल्ट आएगा मई 2025 में। सही है? तो कायदे से अगर हिसाब लगाए तो 23 मंथ्स है, राउंड अबाउट करके 2 साल तो बोल सकते हैं। जो 2025 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए 3 years का टाइम लाइन है, फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर हम लोग क्लियर हो जाते हैं। तो ये 2 साल का प्लान दिमाग में होना चाहिए कि कौन से टाइम पे मैं क्या पढ़ाई करूंगा, राइट। और उसमें भी मुझे आई नीड टू नाउ कंसिडर देयर आर 2 रिसोर्सेस फॉर यू पीपल। पहला रिसोर्स है टाइम, और दूसरा रिसोर्स है एनर्जी। यस, देयर इज आल्सो थर्ड रिसोर्स मनी, वो यहाँ पे नहीं लिखते, बिकॉज इट इज these 2 resources are primarily more important। पैसा तो लगेगा आपको, लेकिन डोंट वरी, योर पेरेंट्स आर स्पॉन्सरिंग इट, तो उसमें आपको ज्यादा टेंशन नहीं है। अनदर थिंग इज दैट यू कैन अर्न इट बैक ना। जब जॉब लग जाएगी तो आपके पास पैसे आएंगे ही आएंगे, वो मैं बताने का जरूरत नहीं है। अरे मतलब सैलरी मिलेगा ना गवर्नमेंट से, तो पैसे वापस हंस रहे लोग, अरे मिलता है सैलरी, ठीक है। तो वो पैसे आप वापस कमा ही सकते हो। तो दैट्स व्हाई आई एम नॉट पुटिंग इट एज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्स, बट पॉइंट इज दैट टाइम इज अ वेरी क्रूशियल फैक्टर हियर। इफ यू टाइम इट देन यू कैन टाइम, मतलब क्या? इफ यू कैन टाइम योर प्रिपरेशन, यू कैन टाइम द रिजल्ट व्हेन यू आर गोइंग टू गेट। बट टाइमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, और टाइमिंग में भी आपको कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो आप बोलेंगे ये क्या एमबीए का क्लास चल रहा है क्या? कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस वगैरह, टाइम प्लानिंग, ऐसा इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट का लेक्चर ऐसे नहीं है, ये हम लोगों को भी करना पड़ेगा। जस्ट ट्राइंग टू कंपेयर इट कि बड़ा बड़ा इंडस्ट्री वाला जो लोग है, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ अ कार इंडस्ट्री, ठीक है। लेट्स से टाटा मोटर्स है या मारुति है, बड़ा इंडस्ट्री, सो दे आर मैन्युफैक्चरिंग थाउजेंड्स ऑफ कार पर डे, और ईच कार रिक्वायर थाउजेंड्स ऑफ पार्ट्स। तो कितना मेटिकुलस प्लानिंग होगा, और सारा तो खुद इन हाउस नहीं बनाता। छोटा सा एग्जांपल है, तो टाटा मोटर्स का गाड़ी बन रहा है, कौन सा गाड़ी का एग्जांपल है, कौन सा अच्छा लगता है आपको? हैरियर, चलो हैरियर बढ़िया गाड़ी दिखता है, मस्त एकदम। बट टाटा मोटर्स हैरियर के सारे पार्ट्स नहीं बनाता है ना। अरे पहिया तो नहीं बनाता होगा, टायर तो नहीं बनाता है टाटा मोटर्स, विंडशील्ड भी नहीं बनाता होगा, कांच का प्रोडक्ट है, राइट। कुछ पार्ट्स नहीं बनाता होगा। जो पार्ट्स वो नहीं बनाता है उनका इन्वेंटरी रखता होगा, किसी से वेंडर से लेके आता होगा, छोटा सा नट बोल्ट से लेके सारी चीज। अभी आप देखो ये पूरी कार में अगर एक छोटा सा पार्ट भी उस टाइम पे अवेलेबल नहीं है, एक नट या बोल्ट नहीं है, या छोटा सा चीज नहीं, तो गाड़ी पूरा बनेगा क्या? अरे आप खरीदोगे क्या? लोगे आप? नहीं लो, कंपनी बाहर भी नहीं निकल सकता। तो हाउ कैन दे मैनेज इतना बड़ी, इतना बड़ा प्रोडक्ट है, इतने उसमें से छोटे छोटे पार्ट है। बट ऐसा भी नहीं कि एक ही इंसान कर रहा है, देयर आर हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स पीपल इन्वॉल्व इनटू दैट प्रोसेस। तो किसी ने भी काम नहीं किया तो काम इनकम्प्लीट रहेगा। तो हाउ दे विल बी मैनेजिंग, बिकॉज दे हैव अ वेरी मेटिकुलस प्लान्ड थिंग, इस टाइम पे ये चीज ये इंसान करेगा, इस टाइम पे ये चीज यहाँ पे अवेलेबल होगी, और वो होगी हो, एंड देन ओनली दे कैन डिलीवर समथिंग एट अ राइट टाइम। हम लोगों को ये खुद के लाइफ में अभी इंप्लीमेंट करना पड़ेगा यूपीएससी प्रिपरेशन। इतनी बड़ी स्केल में नहीं करना है, बिकॉज देयर विल नॉट बी 1000 पीपल इन्वॉल्व इन द प्रोसेस, देयर ओनली विल बी 1 or
few more people will work into the process. For example, parents है जो फाइनेंस करेंगे आपको ऑपरेशन, राइट. कुछ लोग होंगे जो मोटिवेशनली आपको पुश करेंगे कि नहीं करना ही है, इस बार ही करना है, राइट. कुछ लोग होंगे जो आपको डायरेक्शन देंगे कि भाई ये पढ़ वो पढ़. टीचर्स विल बी पार्ट ऑफ दैट, मेंटर्स विल बी पार्ट. तो इट विल बी ऑपरेशन ऑफ 3-4 पीपल. यू, योर पेरेंट्स, योर मेंटर विल बी देयर. ये टीम बनेगा और ये काम करेगा, जिसमें से आप सेंटर पॉइंट हो. यू विल बी द वन जो जितना ज्यादा मेहनत करेगा, अपने आप सराउंडिंग सिस्टम उतना उसको हेल्प करेगा. सो पॉइंट इज दैट कि आपको भी देखना पड़ेगा कि भाई मेरे रिसोर्सेस कहाँ पे लग रहे हैं. तो सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स है हमारा टाइम. तो मेरे पास कितना टाइम अवेलेबल है, उस टाइम में मुझे कितना बेनिफिट मिलेगा. नाउ वी विल बी कैलकुलेटिंग बेनिफिट इन द टर्म्स ऑफ मार्क्स दैट वी आर अचीविंग. अगर कोई कंपनी हम लोग देखते हैं तो वो प्रॉफिट बनाएगा, पैसे कमाएगा, बैलेंस शीट में दिखाएगा कि इतना प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ. हम लोग कैसे दिखाएंगे कि मुझे मार्क्स कितने मिले. एंड इसीलिए जब मैंने आपको बोला कि वो टॉपर्स का एनालिसिस डाला है, तो वो मार्क्स का एनालिसिस है. जब आप प्रीलिम क्लियर हो जाओगे, मेंस में जाओगे, इंटरव्यू जाओगे, तो दिस इज व्हाट यू विल बी ऑलवेज डूइंग इट. बट पॉइंट इज दैट आई एम टेलिंग यू दिस ऑन द फर्स्ट डे कि ये करना है. 2 साल के बाद तो सभी लोग करते हैं, एक बार उस प्रोसेस में चले जाएंगे. तो अगर आप पहले से ही करोगे तो विल बी मोर अवेयर अबाउट द नीड ऑफ द एग्जामिनेशन. तो कितने मार्क्स मुझे आने चाहिए ये पहले पता होना चाहिए. उस मार्क्स लाने के लिए मुझे कितना टाइम देना पड़ेगा ये मुझे पता होना चाहिए. वो कब देना पड़ेगा वो भी पता होना चाहिए. फॉर एन एग्जाम्पल, right now whenever you are starting your preparation, first few months of your preparation, especially till the December, means का preparation आप सब लोगों ने करना is advisable, right? Because from the January onwards you will shift towards prelims. This is general thing that you shall be following. अगर अभी से prelim शुरू कर दोगे तो prelim clear हो जाएगा but mains का preparation नहीं होगा, then final result is not getting achieved. सिर्फ एक stage clear हो जाएगा, but that is not sufficient ना. सिर्फ प्रीलिम क्लियर करने से क्या होगा? नहीं, ओनली फर्स्ट स्टेज हैज क्लियर. बट हम लोगों को क्या करना है, पूरा तीनों स्टेज क्लियर करने हैं ना. दैट हैज टू बी लेट्स से अचीव्ड इन वन गो ओनली. क्योंकि ऐसे थोड़ी ना यूपीएससी का इस बार प्रीलिम क्लियर कर दिया तो नेक्स्ट टाइम आपको सिर्फ डायरेक्टली मेंस ही देना है एवरी टाइम. ऐसे नहीं है यूपीएससी का पैटर्न. इफ यू आर नॉट एबल टू क्लियर एनी स्टेज इन बिटवीन, यू हैव टू गो बैक एंड स्टार्ट फ्रॉम द प्रीलिम अगेन. तो इसीलिए generally it is advisable that you shall clear all the 3 stages in one go, and first attempt is the best attempt for the same. क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट में आपके पास बहुत एनर्जी होता है, फ्रेश भी होते हो, नई नई चीजें पढ़ने को मिलती है, तो आप इंटरेस्ट से पढ़ते भी हो, राइट. और मोटिवेशन भी हाई होता है क्योंकि आप जिस भी मोटिवेशन से आए हो वो रिसेंटली हुआ होता है. बट जैसे जैसे आप इस प्रोसेस में थोड़ा सा ज्यादा टाइम रहोगे तो थोड़ा सा एक मोनोटोनस नेचर आ जाएगा. वो जो मोटिवेशन था वो थोड़ा सा कम होते जाएगा. थोड़े से चैलेंजेस बढ़ेंगे, मे बी फाइनेंशियल स्पॉन्सर्स जो है वो थोड़ा सा बजट कर्टेल कर देंगे तो डिफिकल्टी बढ़ते जाएगा. तो इसीलिए फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर हम लोग क्लियर कर जाते हैं तो दैट इज द बेस्ट अटेम्प्ट. और फ्यूचर में बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जितनी कम उम्र में आप क्लियर करोगे उतना आपका ब्यूरोक्रेसी में हायर position achieve करना is possible. So you all people who are sitting here might be 20, 22, 23 age group है आप लोग. So if you clear in a very first attempt, it is highly possible that you can reach to the higher echelons. Let's say at least you can reach to joint secretary level तक आप आराम से पहुंच पाते. But वो 35 साल 38 साल के बाद की जो बात है वो अचीव करने के लिए आज मेहनत करना बहुत जरूरी, राइट. तो उस हिसाब से प्लान करेंगे तो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस लगाएंगे. तो ये जो अपना सब्जेक्ट है इंडियन सोसाइटी, इसका कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस बहुत बढ़िया बैठता है क्योंकि अराउंड 75 मार्क्स है. देखो 2020 का मैंने एनालिसिस आपको करके दिखाया. अगर इसका एनालिसिस करेंगे 2030 का तो यहाँ पे कितने मार्क्स आएंगे बताओ. 2 क्वेश्चन ऐसे और 2 ऐसे. बैठे बैठे सीसैट का भी प्रैक्टिस हो रहा है, ठीक है. तो इतने आ गए 50 मार्क्स, ठीक है. तो अराउंड 50 मार्क्स टू 75 मार्क्स का वेटेज आज तक इस सब्जेक्ट को रहा है. अभी अगर यहाँ पे देखेंगे तो मैंने 2021 एंड 2022 का ब्लैंक रखा है, ठीक है. तो क्यों रखा है? तो आपके लिए होमवर्क है, राइट. अभी लोग हंस रहे होमवर्क, मैं स्कूल में थोड़ी ना हूँ, लेकिन स्कूल के बच्चों जैसे ही पढ़ो. क्योंकि स्कूल के बच्चे कैसे पढ़ते हैं, वो निरागस हंसते बेचारे, है कि नहीं.
they know that this is a task I have to complete. And then because उनको ये होता है कि मुझे खेलने जाना है, they are more interested into मुझे खेलने जाना है तो मैं पहले पढ़ाई immediately कर लेता हूँ, then lot of time will be there, I can play around. But हम लोगों को अभी खेलने नहीं जाना है, so we will take a lot of time to complete the same thing again and again. But the point is that whatever homework that we will be suggesting you, yes, I will be giving you a lot of homework. करना है नहीं करना है आपका चॉइस है, बट यूपीएससी की डिमांड है आप करो, राइट? अगर आप करोगे तो योर एफर्ट्स विल बी डबल्ड इन द सेम टाइम पीरियड, और इसी को तो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस बोलेंगे. तो एक इंसान को एक चीज करने के लिए 3 साल लगे, मैंने 2 साल में कर दी. नाउ दैट इज एन एडवांटेज ऑफ द होमवर्क. मोर यू पुट एफर्ट फ्रॉम योर साइड, मोर एफर्ट्स विल कम फ्रॉम माय साइड, राइट? तो ये तो मेरा आपको अभी वादा ही है. इफ यू गिव मी 100%, आई विल गिव 200% फ्रॉम माय साइड. दोनों का मिला के 300% कर देंगे, राइट? बट फर्स्ट कंडीशन इज, क्या है भाई फर्स्ट कंडीशन? यू हैव टू गिव 100% फर्स्ट. तो कुछ होमवर्क दिया जाएगा, छोटा छोटा सा होगा, इजी टू डू, बट हैव टू डू इट. सो यू हैव टू गो थ्रू द बुक्स, रीड इट, फाइंड आउट समथिंग, पुट इट ऑन पेपर, कम बैक विद इट, शो इट टू मी, सो दैट आपका पढ़ाई जो है स्पीड अप होते जाएगा. एंड दैट इज हाउ वी विल, राइट? इट्स अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, यू एंड मी. और हमेशा आप क्लास में याद रखना, देयर आर ओनली 2 people in the class, you and me. Other people does not matter. Even if there are 200 people sitting around you, it does not matter, because आपका जर्नी इंडिविजुअल है. And I told you already, there are only few players in your journey: parents, you, and your mentor. Other people does not matter, right? कुछ लोगों को बुरा लग रहा है कि अरे किसी विशेष व्यक्ति का भी है इसमें, बट उसका आप देख लो क्या करना है. But point is that according to me, there are only 3 people, shareholders in this process. First is you, other is your parent, and third is your mentor. Believe me, these 2 shareholders, parents and let's say 3 लोग, माता पिता और आपके टीचर, these are the only 3 people along with you aspire for your success. Other people find you competitor, they do not find you competitor. आपके पेरेंट्स के आप कॉम्पिटिटर थोड़ी ना है कि, उल्टा आपका जितना सक्सेस है उसका उनको ज्यादा, आपसे ज्यादा उनको खुशी होगी. कोई भी चीज कर लो आप, जो भी चीज में आपको यश मिलेगा, सक्सेस मिलेगा, दे विल बी मोर देन हैप्पी. वेरी सिमिलर टू अ टीचर, बिकॉज टीचर का भी आप कॉम्पिटिटर हो ही नहीं ना, उल्टा उनका क्या हो, आप पार्ट हो. व्हेन यू सक्सीड, टीचर फील दैट आई सक्सीडेड, बट ऑल अदर पीपल विल बी फाइंडिंग यू कॉम्पिटिटर्स. लुक अराउंड यू, द वर्ल्ड इज फुल ऑफ इट. So you need to be very careful. You need to be always in contact with your mentor. You shall have a mentor, at least you clear this particular examination. Do follow it. But again, it is a symbiotic relationship. More you do, more you get. Right? That is a very logic. तो cost benefit analysis हमेशा लगाएंगे. मुझे एक सब्जेक्ट पढ़ाई करने के लिए कितना टाइम लगता है, वो मैं कब पढ़ूं, these are the very important areas. एनर्जी का हम लोगों ने देखा कि ना, एनर्जी इज लिमिटेड, because we are not machine, we are human beings. तो दिन में 24 घंटे, तो it is not required that आप 23 hours पढ़ो. Nobody can, right? Only few great people are able to study 16-18 hours day, a continuous period of time. But we need not to be that great, right? We need to be very common, but little bit more than a common person. तो 7-8 घंटे रोज पढ़ेंगे, 8 घंटे एवरेज, ठीक है. 8 hours we can study. Then 8 hours we can keep it for our requirement. खाना पीना खाया, सो गए, ठीक है. Still 8 hours are remaining, उसमें आप क्लास कर लो, और जो टाइम बचता है उसमें you can do whatever you want. You can have some hobby, you can do some exercise, you may read some good books. This will also help. तो इसका भी यूज करेंगे. You choose what you want to do in that 8 hours, but 8 hours dedicatedly shall be focused on civil service preparation. और अगर शुरू से करोगे तो बाद में लोड भी नहीं आएगा एकदम से कि कम दिन बचे, बहुत सिलेबस बचा, ये नहीं होगा. शुरू से ही हम लोग उसको देखेंगे. तो ये होता है कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस का लॉजिक, राइट? और उसमें अपना इंडियन सोसाइटी पार्ट इज सूटेड वेरी वेल, क्योंकि व्हेन वी विल स्टार्ट विथ आवर लेक्चर्स, व्हेन वी विल फिनिश विथ आवर लेक्चर्स, you will take 10 days to read through whatever we have studied, make your own notes, and also try to solve some previous year's question. 10 to 15 days is the only time that is required for this subject. And how much marks you are getting? Around 75 marks is allocated to this subject directly. And indirectly तो हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है कि भाई एथिक्स समझने में आपको बहुत आसानी हो जाएगी.
ऐसे लिखने में आपको बहुत आसानी हो जाएगी। 2-3 पैराग्राफ तो आप इसी एंगल से लिख सकते हो, तो वहां पे भी आपको मार्क्स मिलेंगे। एंड ऑल्सो इट विल हेल्प यू इन अदर आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट्स आल्सो, बिकॉज इफ यू आर चूजिंग सोशियोलॉजी एंड ऑप्शनल सब्जेक्ट, तो ये तो आपका बेस बनाएगा, बिकॉज सोशियोलॉजी का एक छोटा पार्ट करके उन्होंने सोसाइटी का इशू डाला है। इवन इफ यू टू टेक एनी अदर ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट, लेट्स से पॉलिटिकल साइंस, तो पॉलिटिकल साइंस किसकी बात करते हैं कि हाउ पावर इज डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू सोसाइटी, तो सोसाइटी पहले अंडरस्टैंड करो। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, हाउ एडमिनिस्ट्रेशन शैल बी रन फॉर द सोसाइटी, अगेन सोसाइटी आए। साइकोलॉजी क्या पढ़ेगा, इंडिविजुअल लिविंग इन अ सोसाइटी कैसे बिहेव करता है, तो सोसाइटी भी पता होना चाहिए। एंथ्रोपोलॉजी, इट्स अ सिस्टर डिसिप्लिन ऑफ सोशियोलॉजी, ये भी वही पढ़ता है जो सोशियोलॉजी पढ़ता है, सिर्फ पुराने लोगों का पढ़ता है। सोशियोलॉजी आज के जमाने का कंटेम्पोरेरी सोसाइटी पढ़ता है, एंथ्रोपोलॉजी पुरानी सोसाइटी पढ़ता है, बस। और कोई भी आप ऑप्शनल सब्जेक्ट ले लो। हिस्ट्री पढ़ो, हिस्ट्री क्या है, हिस्ट्री यू आर रीडिंग द पास्ट सोसाइटी, कि पहले लोग कैसे रहते थे, अंडरस्टैंड। ज्योग्राफी आप, देयर आर नाउ ह्यूमन ज्योग्राफी जो पार्ट है, उसमें भी आपको सोसाइटी का डिस्कशन है, इकोनॉमिक ज्योग्राफी में। तो वॉट एवर ऑप्शनल यू विल बी चूजिंग, दिस इज गोइंग टू हेल्प यू अलॉट, राइट? एंड दैट इज वाई this part of the syllabus, not only for the understanding purpose but also from the marks point of view, that is what our objective is to get, ये subject important role play करता है, and that's why we will be focusing on it. तो focus करेंगे तो पढ़ाई करना पड़ेगा, तो पढ़ाई कैसे करेंगे, तो there are certain resources that are suggested for you. इसमें अगर आप देखोगे तो these resources primarily comprised of NCERT books, राइट? कोई ये मत लिखने का जरूरत नहीं है, दिस इमेज हैज बीन ऑलरेडी अपलोडेड ऑन द टेलीग्राम चैनल, वहां पे जाके आराम से डाउनलोड कर लो, क्योंकि सिर्फ नाम लिखना काफी नहीं है बुक का, जैसे कि मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। नाउ दिस इज अ 6th स्टैंडर्ड एनसीईआरटी, उसमें सारा नहीं है अपने के काम का, मतलब अलग सब्जेक्ट के लिए लगेगा तो आप पूरी बुक पढ़ लो, लेकिन सोसाइटी का जो पार्ट है आपको वो इस 2 चैप्टर में ही दिया है, समझ रहे हो, राइट? तो ये 2 चैप्टर पर डाइवर्सिटी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सीलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी। फ्रॉम द चाइल्डहुड वी आर जनरली लिसनिंग टू दिस टर्मिनल फ्रेज दैट यूनिटी इन डाइवर्सिटी, तो पहले डाइवर्सिटी क्या है ये तो पता होना चाहिए, तो यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है। तो 6 स्टैंडर्ड का एनसीईआरटी है। वैसे आप ये देखोगे 8 स्टैंडर्ड का एनसीईआरटी, उसमें से ये 4 चैप्टर आप पक्का पढ़ लेना, राइट? बहुत बढ़िया है। उसके बाद में ये एनसीईआरटीज है, ये पूरी पढ़नी है आपको, 12th क्लास की एनसीईआरटीज है, इंडियन सोसाइटी एंड सोशल चेंज एंड डेवलपमेंट इन इंडिया, ये 2 एनसीईआरटीज है। तो ये 2 एनसीईआरटीज पूरी पढ़नी है, और ऊपर की जो 2 एनसीईआरटीज है उसमें से सिलेक्टेड टॉपिक्स आपको पढ़ने। अलॉन्ग विद दैट देयर आर 2 मोर एनसीईआरटीज। इंट्रोड्यूसिंग सोशियोलॉजी नाम का भी एक एनसीईआरटी है, वो पर्पसली यहाँ पे नहीं डाला है, but those who want to get little more depth into social issues, आप suggested है कि आप पढ़ो उसको, या those who are trying in the future, those who want to join for sociology as an optional subject, वो तो पढ़ो ही पढ़ो, right? Now you might be all aware about that जुलाई से optional subject शुरू हो जाएंगे। Now that is also a case जो हम लोग बोल रहे थे कि मेंस का प्रिपरेशन अभी आपको करना है, तो optional subject plays a very important role in mains ka preparation. 500 marks are there and it is the most scoring subject in all your preparation. तो आप जब टॉपर्स के मार्क्स का एनालिसिस करोगे, you'll get to know that what I am doing. Just giving an example of sociology which I am teaching, 315 मार्क्स का टॉपर है सोशियोलॉजी का, राइट? तो अगर 500 में से 315 किसी को मिल रहे, हाउ मच इज द परसेंटेज दैट द पर्सन हैज अचीव्ड? सीसैट भी है, हाँ, तो इसमें करना होता है ये, और बहुत डिफिकल्टी लेवल बढ़ा दी है सीसैट की उन्होंने। तो दोज हु आर फीलिंग दैट आई एम वेरी गुड इन सीसैट पार्ट, 70%, तो तुक्का मार दिया, 63%। चलो, इंजीनियर, साइंस बैकग्राउंड, हाँ, क्या क्या है बैकग्राउंड? बीसीए, ठीक है, चलो। सो पॉइंट इज 63% मार्क्स आर अचीव्ड देयर। कैसा आया, किसको आया पता नहीं है, कोई बात नहीं, आपके मोबाइल का कैलकुलेटर निकालो, उसको यूज करो, और लास्ट टाइम उसको बोलना कि सॉरी बाय बाय, आज से तुम्हें नहीं यूज करेंगे, क्योंकि एग्जामिनेशन में अलाउड नहीं है।
और सीसैट में ऐसे क्वेश्चन आते परसेंटेज, प्रॉफिट शेयरिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो हम लोग इसमें थोड़ा सीसैट भी पढ़ लेंगे इंडियन सोसाइटी पढ़ते पढ़ते। तो पॉइंट इज दैट in your optional subject you can achieve up to 60% marks, right? Very difficult to achieve in any GS paper. GS paper में अगर आपको 100 में से around 250 में से अगर you are getting 125 100 plus marks तो भी अच्छे मार्क्स समझे जाएंगे। So point is that कि 500 marks जो है optional के that will lead your score beyond average mark। तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कौन सा लेना है और उसका बहुत डेप्थ में आपको पढ़ाई करना पड़ेगा और वहां पे आपको लीड करने का पॉसिबिलिटी बढ़ेगा, राइट? सो ये एनसीईआरटीज है, ये आपको पढ़ने। अलोंग विद दैट देयर इज अनदर बुक, सोशल प्रॉब्लम्स इन इंडिया। राम आहूजा साहब इसके ऑथर है, उन्होंने ये किताब लिखी है, तो ये भी आप पढ़ सकते हो। इट्स अ क्वाइट डिटेल्ड बुक है, बहुत सारे इश्यूज दिए हैं उसमें, बट आई विल सजेस्ट पहले एनसीईआरटीज पढ़ेंगे, मतलब 6 स्टैंडर्ड और 8 स्टैंडर्ड का, देन 12 स्टैंडर्ड के 2, वो खत्म होने के बाद भी बच्चा तो वो इंट्रोड्यूसिंग सोशियोलॉजी और वो वाला भी 2 और एनसीईआरटी पढ़ेंगे, तो टोटल 6 एनसीईआरटी हो गए। ये भी सारा पढ़ा और उसके बाद भी लग रहा है कि नहीं, आई वांट टू लिटिल बिट गो इनटू द डेप्थ ऑफ द सब्जेक्ट मोर, तो ये बुक है भाई, ये आप पढ़ सकते हो, बट डू फॉलो द सीक्वेंस। और यही तो डायरेक्शन है, राइट? कि कौन सा पढ़ाई पहले करना है, कौन सा बाद में करना है, ये पता होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज मिस डायरेक्शन हो जाएगा। You will be putting lot of efforts, but result जो बेनिफिट मार्क्स है वो नहीं आ रहे क्योंकि डायरेक्शन मिसिंग है। तो ऐसे मत करो, डू फॉलो द सीक्वेंस, इसी सीक्वेंस से जाना तो आपका टाइम बचेगा। और सबसे इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है, किताब पढ़ने के बाद जो आपको लगेगा ये है न्यूज़पेपर, राइट? So first and foremost thing is that you shall first read through these books which will give you conceptual clarity, ट्रेडिशनल नॉलेज विल बी जनरेटेड, राइट? अगर आपको याद है तो पहले ही हम सब लोगों ने लिया कंसेप्चुअल नॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट, देन उट्स एप्लीकेशन इज इंपॉर्टेंट, राइट? तो एप्लीकेशन में अगर आप जाओगे तो न्यूज़पेपर इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट, इट विल जनरेट लॉट ऑफ केस स्टडीज, एग्जांपल्स, लॉट ऑफ रिपोर्ट्स कैन बी कोटेड फ्रॉम दीज सोर्सेस। तो ये न्यूज़पेपर आप पढ़ते चलो। अगेन कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ना है, तो एनी नेशनल न्यूज़पेपर इज गुड टू रीड, but the Hindu and Indian Express gives a little bit more content than any other newspaper from the need of the examination of UPSC. Otherwise आप कोई भी पढ़ सकते हो, but UPSC में अगर आप देखोगे तो इंडियन एक्सप्रेस का एक्सप्लेन्ड पेज है, बहुत ही बढ़िया उसमें कंटेंट आता है, और जो एडिटोरियल है और साइड वाले आर्टिकल्स है वो भी बढ़िया होते हैं, सेम एज इन हिंदू, द हिंदू नाम का न्यूज़पेपर है तो उसमें भी आते हैं। टू डू रीड द न्यूज़पेपर, और न्यूज़पेपर रीडिंग का सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कंसिस्टेंसी, राइट? तो आपको रोज पढ़ना है, हर रोज पढ़ना है, और शुरू में आपको डिफिकल्टी आएगा, नो डाउट अबाउट इट, इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम, बट शुरू में आप थोड़ा सा वो दो। दूसरी चीज है कि न्यूज़पेपर रीडिंग का जो टाइम है वो स्लोली कम होते जाएगा एज एंड व्हेन यू विल बी कंप्लीटिंग विद द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ योर सिलेबस। तो जैसे आप इंडियन सोसाइटी पढ़ोगे देन यू विल बी knowing about a basic concept of communalism. So when you are reading Manipur ka news, you will be quite aware about what is happening there. You just need to get little bit dates कि अरे हाँ मैथी ट्राइब है, कुकी ट्राइब है, कौन हिल ट्राइब है, कौन प्लेन ट्राइब है, या whenever you are reading कोल्हापुर का incidents which is recently happened, it's a local incidents now. Generally we will refer to national level incidences, but for our understanding, let's say when this Kolhapur incidents has happened, we'll get to know how this happened. So it's not only the particular thing that has happened that particular day, उसकी वजह से नहीं हुआ है, so there is certain philosophy of communalism that is working behind it. Or whenever you are talking about कि still society is stable, तो secularism का क्या issue है, how the polity, government, state is reacting to such type of incidents, तो उसमें secularism का टॉपिक आपको यूज होगा। तो जैसे जैसे हमारा स्टैटिक सिलेबस जो है, ट्रेडिशनल सिलेबस जो है, कंसेप्चुअल पार्ट ऑफ सिलेबस जो है वो कवर होते जाएगा, इंक्लूडिंग दिस सब्जेक्ट एज वेल एज अदर सब्जेक्ट। आपका न्यूज़पेपर समझने का जो टाइम है वो कम होते जाएगा, एंड स्लोली इट विल श्रिंक टू अराउंड 45 मिनट्स अ डे टू 1 आवर अ डे। बट अभी टाइम लगेगा, बट डोंट स्किप इट, कंसिस्टेंसी इज द वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, राइट? तो वो आप करोगे। बट ये जो सोर्सेस मैंने आपको बताया है, आई हैज ऑलरेडी टोल्ड यू दैट टेलीग्राम चैनल दैट इज देयर, इट इज ऑलरेडी
this image is already uploaded there. थोड़ा सा आपको ऊपर नीचे जाके थोड़ा सा देखना पड़ेगा और I will upload it again today. There is no issue. But आप थोड़ा सा पीछे पीछे जाओ, उसमें बहुत सारी चीज आपके काम की दी है. Do go through that one by one. और जब आप जाओगे, you will find out that this is there. Do follow the sequence. Sequence is a very important criteria here. Understood? So that is how we will be proceeding in our future. Now इसमें अगर आप देखोगे तो I will give you another homework. First हम लोग करेंगे कि 2021 और 2022 का जो मेंस का क्वेश्चन पेपर है, जीएस का क्वेश्चन पेपर हम लोग लेंगे, डाउनलोड करेंगे. उसमें इंडियन सोसाइटी के कौन से क्वेश्चन आए थे वो हम लोग पढ़ेंगे. तो इसमें बेनिफिट क्या हो जाएगा, 20 क्वेश्चन है जीएस पेपर 1 में, उसमें से 5-6 क्वेश्चन जीएस इंडियन सोसाइटी के, बाकी 15 क्वेश्चन इधर हिस्ट्री के होंगे या ज्योग्राफी के होंगे. तो इससे फायदा ये होगा कि हिस्ट्री का भी कुछ पढ़ाई हो गया, ज्योग्राफी का भी कुछ पढ़ाई हो गया, सोसाइटी का भी, राइट. तो उसमें से आइडेंटिफाई करके अच्छा हाँ ये सोसाइटी के क्वेश्चन है, राइट. तो देखेंगे कितने मार्क्स का आया था, 50 मार्क का आया था, 60 मार्क का आया था, 75 मार्क का आया था. वी विल ट्राई टू कैलकुलेट द स्कोर. बट इनडायरेक्टली उसमें से क्या होगा, देखो ये हिडन ऑब्जेक्टिव है मेरा कि बिकॉज यू आर रीडिंग थ्रू द क्वेश्चन पेपर, आपका हिस्ट्री का भी पढ़ाई हुआ, क्वेश्चन का ज्योग्राफी भी हुआ, इंडियन सोसाइटी तो हुआ ही हुआ. सो नेक्स्ट टाइम व्हेन वी विल टॉक स्टार्ट विद एनी पर्टिकुलर टॉपिक, आई विल से लेट्स टॉक अबाउट दिस इशू, ये बात हुआ है, दिस इज अ कांसेप्ट. क्या इसके ऊपर कोई प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में आया है क्वेश्चन? तो those who have done this analysis will be knowing about it. And believe me, मैं पूछूं अगर ना पूछूं, when I am teaching something and if you are doing the question paper analysis, you know the syllabus in a very good way, you will be able to connect कि अच्छा सर इस पॉइंट के बारे में ये बता रहे हैं, जीएस पेपर 2 में भी यहाँ पे कनेक्ट होता है, 3 में यहाँ पे कनेक्ट होता है, अच्छा इसके ऊपर ये PYQ आया था, तो अगर ये PYQ आता, ये जो पॉइंट सर ने अभी बताया, इसको मैं कैसे लिखता हुआ सर. So from the day one only you started at least developing a thought process about answer writing. तो आंसर राइटिंग करना पड़ेगा हम लोगों को इन द ड्यू कोर्स ऑफ टाइम. बट उसके भी स्टेजेस है. फर्स्ट वी नीड टू जनरेट अ कंटेंट, पता होना चाहिए क्या होता है, क्या लिखना है. उसके बाद में उसका आर्टिकुलेशन कैसे करना है, एक थॉट प्रोसेस होता है, कैसे आना चाहिए. एंड देन कम्स द थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कि उसको कागज पे लिखा जाना चाहिए, राइट. उसमें भी बहुत सारी चीजें कि टाइम में कंप्लीट होना चाहिए आंसर, राइट. तो ऐसे नहीं कि एक आंसर आप 20 मिनट लिख रहे हो तो पेपर पूरा नहीं होगा, और ऐसे भी नहीं है कि एक आंसर आप 2000 वर्ड में लिख रहे हो. नहीं, उन्होंने बोला 150 वर्ड या 250 वर्ड स्पेसिफिकली उसमें अखबार लिखना है. तो दीज आर ऑल पार्ट्स ऑफ योर स्किल जो स्लोली डेवलप होगा. टाइम में बिठाना है, वर्ड लिमिट में बिठाना है, ये स्लोली डेवलप होगा. बट फर्स्ट ऑफ ऑल विल फोकस मोर ऑन कंटेंट, उसमें क्या आना चाहिए, और उसमें जितना आप ज्यादा मेहनत डालोगे उतना आपको ज्यादा स्पीड अप होगा प्रोसेस, और उतना ज्यादा आप कंप्लीट करोगे. जो 1 ईयर का टारगेट हम लोग लेके जा रहे हैं कि पहले 4-5-6 महीने मेंस का प्रिपरेशन करेंगे, 5 महीने प्रीलिम का करेंगे, एंड द प्रोसेस विल स्टार्ट फ्रॉम 26 ऑफ मे, राइट. 26 ऑफ मे ही है ना, अरे आपका प्रीलिम का एग्जामिनेशन, तो वो डेट दिमाग में होना चाहिए. अभी किसी का बर्थडे याद नहीं है तो भी चलेगा, खुद का नहीं याद है तो भी चलेगा, राइट. ओके, बट प्रीलिम का डेट पता होना चाहिए, मेंस का डेट पता होना चाहिए. ये 2 डेट दिमाग में जितना छपेंगे उतना आपका काम उस दिशा में आप काम करना शुरू कर दो, राइट. सो दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड अबाउट दिस पर्टिकुलर सेशन. बट इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज आस्क, आई विल बी हैप्पी टू आंसर. Online student, you can put it into chat box, or also you can ask, you can unmute and ask. ठीक है. अच्छा, so he's asking while writing an answer, shall we follow paragraph format or a point format? So I will say we will choose according to the question that is asked, right? Suppose they have asked in a way that enumerate the reasons of communalism, rise of communalism in Indian society.
So we'll use यहाँ पे हम लोग point format is advisable. But suppose same topic is there. They have asked, do you think that there is a rise of communalism in India? Analyze the statement with recent examples. तो इसमें it is advisable that you shall go for the paragraph format because पहले आपको पूछा है कि तुम्हें क्या लगता है. And now what do you think मतलब you नहीं है, ठीक है. तो पर्सनली नहीं लेना है कि मुझे पूछा है तो मैं बता के ही रहूंगा, अभी देखो कैसे बताता हूँ. दैट इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव, राइट. या अगर उन्होंने पूछा है कि डू यू थिंक दैट देयर इज अ राइज ऑफ सेक्युलरिज्म, देयर इज अ राइज ऑफ कम्युनलिज्म इन इंडिया, तो ऐसा भी नहीं है यस लिखा डॉट लिखा चलो आगे बढ़ो. तो मुझे पूछा था मैंने तो बोल दिया हुआ है तो इसको मार्क्स दे दो, तो एग्जामिनर बोलेगा अरे वाह वाह मैं मार्क्स नहीं दूंगा मैं भी आगे जाऊँ, राइट. तो आप मन मर्जी करोगे तो एग्जामिनर मन मर्जी करेगा, नुकसान हमारा है, ठीक है. तो अंडरस्टैंड इट. सो नाउ इट इज वेरी कॉमन सेंशियल कि आप ऐसे नहीं करोगे, बट पॉइंट इज दैट जो पहला वाला क्वेश्चन था उसमें पॉइंट फॉर्मेट लिखना क्वेश्चन के हिसाब से सही है. दूसरा वाला जो क्वेश्चन है टॉपिक सेम है बट क्वेश्चन की डिमांड उन्होंने ऐसे बनाई कि पैराग्राफ फॉर्मेट में प्रिफर कर सकते हैं, राइट. बट दैट विल बी फोर्थ स्टेज ऑफ योर आंसर राइटिंग कि मैं टाइम में भी लिख पा रहा हूँ, वर्ड्स लिमिट में भी लिख पा रहा हूँ, अभी उसका फॉर्मेट कैसे है. दैट विल बी द फोर्थ स्टेज. फिफ्थ स्टेज है रिप्रेजेंट कैसे करते हो. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फोकस ऑन फर्स्ट थिंग, कंटेंट डेवलप करेंगे एंड देन वी विल मूव ऑन वन बाय वन टू द नेक्स्ट स्टेज.